Hello and welcome. You're watching the national debate. I'm Padmaja Joshi. Very, very long ago, there was a show on Indian television called Kamzor Kadi Kaun. It basically entailed Neena Gupta telling people that they were the weakest link in the chain and slowly eliminating them. Is that what is happening in Indian politics as the election dates get closer? Remember, in less than 10 days from now, it is being said that the Model Code of Conduct will be in effect and the election dates will be made public. Where do things stand right now? Most of the constituents of INDI have decided to take an independent path, either officially or unofficially. They are chalking out their own election campaign. They are putting out their candidate list with or without the Congress. The BJP, on the other hand, has already got its list in place. 150 names have already been finalized, are just going to be made public. And in the middle of it all, the Congress party is jumping from one fire to the next. Sometimes it is about their leaders defecting from Kashmir to Kanyakumari. Sometimes it is about trying to save their government, losing their Rajya Sabha seats. And sometimes about wondering who their real leaders are. So is the Congress turning out to be the Kamzor Kadi as the elections draw near? And how does that shape the election picture as we speak right now, with election dates round the corner? Joining us on the national debate, we have Bansuri Swaraj, spokesperson of the BJP, joining us along with senior journalist Sameer Chaugankar. Senior journalist Vinod Agnihotri also joins us along with Professor Anwar Pasha, spokesperson of the RJD, and two defenders of the Congress party, Romesh Sabharwal, who's a leader of the Congress in Delhi, and political analyst, advocate Nikhil Jain. Let's start by focusing on the latest crisis that the Congress found itself facing, which is Himachal Pradesh. The overall crisis was precipitated by the Rajya Sabha elections. You had got plenty of cross-voting happening. The Samajwadi Party also faced the brunt of it in Uttar Pradesh. But it almost sunk a government in Himachal Pradesh. Let me start by asking the non-political voices. Sameer ji, आप बताइए कि आपको लगता है कि क्राइसिस खत्म हो गई है और ये दिखाता है कि कांग्रेस गॉट इट्स एक्ट टुगेदर. उनके 3 मस्केटियर्स पहुंचे शिमला और डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा ने सब कुछ सही कर दिया. देखिए, कांग्रेस के अंदर कभी क्राइसिस खत्म नहीं होती है. कांग्रेस के अंदर किसी ना किसी राज्य में क्राइसिस पॉलिटिकली चलती रहती है. और आप देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व का आप देखिए किस तरीके से काम होता है. मध्य प्रदेश के अंदर आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया विद्रोह करते हैं, आपकी सरकार चली जाती है. कर्नाटका में आपके एमएलए विद्रोह करते हैं, आपकी सरकार चली जाती है. बड़े राज्य आप गवा देते हैं और एक छोटा राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इतना छोटा राज्य है, वहां पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आते हो. वहां पर पहले दिन से प्रतिभा सिंह और सुक्खू के बीच तरीके से रस्साकशी चल रही थी. आप देखिए, उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार है आपके पास और आप अपना राज्यसभा का उम्मीदवार वहां से हरवा देते हो. आपके 6 एमएलए विरोध में चले जाते हैं और आपको भनक नहीं लगती है. रात को वो सीएम के साथ रात को डिनर करते हैं, दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और जब वोटिंग करना चाहते हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी के जो हर्ष महाजन उन्हें वोट करके आते हैं. मुझे लग रहा है कि लगातार जो पार्टी के अंदर विरोध हो रहा था, केंद्रीय नेतृत्व को संदेश जा रहा था. केंद्रीय नेतृत्व आग बंद करके बैठा था. उसी तरीके से आग बंद कर ली थी जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र के अंदर बता रहे थे, बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के अंदर बता रहे थे, और अन्य राज्य में आप देखोगे अभी गुजरात के अंदर 18वां पार्टी छोड़ चुके हैं. तो आप मुझे बता दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां कांग्रेस का नेता कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा है. या तो वो किसी रीजनल पार्टी में जा रहा है, या वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, या राजनीति से संन्यास ले रहा है. मध्य प्रदेश के अंदर अगर कमलनाथ और उनका बेटे नकुलनाथ पार्टी छोड़ने की बात चलती है, 2 दिन वो दिल्ली में बैठे, पूरा मीडिया इस बात की चर्चा करता है, तब भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ से जाकर बात करने की स्थिति में नहीं है. यह बताता है. और जब इतना पॉलिटिकल क्राइसिस है, उस समय राहुल गांधी अपनी यात्रा करते हैं और बाद में विदेश चले जाते हैं. तो राहुल गांधी के लिए जरूरी क्या है? विदेश यात्रा जाना जरूरी है? यात्रा जरूरी है? क्या उत्तर भारत में अपनी बची हुई एकमात्र सरकार को बचाना जरूरी है? तो विनोद जी, ये बताइए कि अगर आपसे एक राज्य नहीं संभल रहा है, एक राज्यसभा का चुनाव नहीं संभल रहा है, तो फिर ये लोकसभा चुनाव कैसे लड़ने वाली है कांग्रेस पार्टी? देखिए, राज्यसभा की जहां तक बात है, 2 एग्जाम्पल है हमारे, हिमाचल का भी है, कर्नाटक का भी है. हिमाचल में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी जो है उसके 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं, 8 विधायक, और मुख्यमंत्री जी इतने बेखबर हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि राज्य में हो क्या रहा है. और उनके राज्य से, जैसा कि उनका आरोप है, वो दूसरे राज्य की पुलिस आकर के उनके विधायकों को किडनैप कर लेती है. तो मुझे तो लगता है सुक्खू जी को इसी में इस्तीफा दे देना चाहिए था कायदे से. इतने आप नाकाबिल मुख्यमंत्री हैं कि आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है.
काउंटर एग्जाम्पल कर्नाटक का है, वहां उल्टा क्रॉस वोटिंग करा दी बीजेपी के 3 विधायकों से। अशोक गहलोत एक्टिव थे, अपनी सरकार बचा ली, कमलनाथ नहीं बचा पाए। तो जो लोकल लीडर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं है, उनकी तो है ही, लेकिन जो लोकल, अशोक गहलोत का एग्जांपल सामने है, उन्होंने बचा ली सरकार। तो लीडरशिप की फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आपका लोकल लीडर इतना इनकॉम्पिटेंट है तो उसको हटवा क्यों नहीं सके आप? हाँ, ये सबसे पहली बात है कि आपने चुना किसको? आपने चुना कि भाई चलिए एक राज परिवार से सत्ता को निकाल करके हम एक कार्यकर्ता को दे रहे हैं, अच्छी बात है, हम सबने तारीफ की। अब वो कार्यकर्ता कैसे एक्ट कर रहा है, ये ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी है, ये प्रभारी की जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर अपने चीफ मिनिस्टर को बताएं कि क्या करना। जो शिकायतें प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह ने की है, तो वो जैसा कि प्रतिभा सिंह का कहना है कि हमने सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको बता दिया था, तो ये बात एड्रेस करना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को इन चीजों को। और अगर नहीं कर रहे थे तो इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आप अब बना रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले बन सकती थी, नहीं, क्या दिक्कत थी? कमिटी तो बन गई है बट कोऑर्डिनेशन नहीं है। Ramesh Sabharwal, before you come in, you know, everyone is saying that this shows that the Congress is getting its mojo back. I want you to listen to what Pratibha Singh said in the last 24 hours. Despite this so-called coordination meeting, she is saying the chief minister is not listening to me. And well, the 6 people who have been called rebels by her own chief minister, she's saying उनके जो है बहुत ही जायज है, उनके जो भी ग्राउजेस हैं उनको सॉल्व किया जाना चाहिए. Let's quickly listen in to what Pratibha Singh is saying even after the so-called truce has happened. Listen. I raised the issue that there should be a coordination between the party and the government. If party says something, government should implement it there and then. Today I sat with DK Shiv Kumar ji, who is the party president in Karnataka. He told me, when I put my grievances across, he told me that I am the party president. The moment I say anything to the chief minister, there and then it is implemented. But I said, I'm sorry, this is not happening here. So that was my concern. So that's why I put it in front of him and I told him that these are the grievances. And if you don't sort it out, this is what we are facing today is because of that. Had they listened, had they sat, had they communicated, things would have not come to this what has we are seeing today. Ramesh Sabharwal, does this look like a party that's battle ready for the Lok Sabha elections where your state Congress chief is still backing the rebel MLAs? Ma'am, we were having a problem in Himachal, there is no doubt. I met the PCC president and I met the CM also 2 months back. I could make out and I told Rajiv Shukla ji also this problem is there. We lost the election in Himachal on 2 issues. One by a toss, our bad luck. The media is not saying that why we lost, it's toss. Secondly, our MLAs betrayed us because they were not satisfied with the functioning of the President Chief Minister. Thirdly, the outsider and the insider. Harsh Mahajan was a Congress man. He was in the Congress party since last 40 years. He was a youth Congress state president. He was minister. His father was a minister. He left the party. He was knowing everybody. And we put Singhvi ji. So that was the problem, you know, where we got a problem. And the in charge of the state, that was his duty to make a coordination between the PCC and the government. Unfortunately, in Himachal it has happened. Vinod ji was telling that it is 100%. But now, Khadke ji has appointed 3 observers. They are mature, they are senior. Bhupender Hooda is very senior. DK Vishnu Kumar is also the NSUI Youth Congress product. He's also senior. So they have made a solution now. We are hopeful that Himachal will be controlled now. But sir, are you going to live on a hope and a prayer or is there some actual plan that you have? Madam, Modi ji के सामने उम्मीद कायम है टाइप की राजनीति कब तक चलेगी? मोदी जी की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है. इंदिरा जी में तो गट्स थे. प्रेसिडेंट से नोटिफाई कराया था, टीवी पे आके बोला था. इस समय तो देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से भी हालात बुरे. I don't necessarily think the declaration of emergency is a sign of having guts. ईडी चली जाएगी, सीबीआई चली जाएगी, हरियाणा पुलिस चली गई, सीआरपीएफ चली गई. मैम क्या हो रहा है? चंडीगढ़ का तो टोटली आपके सामने एग्जांपल है, झारखंड का एग्जांपल है. हम लोग तो सरेंडर किए हुए. I want to humbly point out that your own MLAs here are sitting in Panchkula. Apparently, even they are not taking the chief minister's phone call, their wives are talking. Vikramaditya Singh, when he went to meet them, 2 of them said, I don't even want to talk to you. My question to you again is,
Is this a party that is battle ready? No, ma'am, we were having a problem. We are having a problem in Himachal. They all want to come back now because their grievances have been listened by the committee. All these 3 observers which we sent. This would have done earlier also. So there was a sub problem. I'm not saying that, but we are rectifying it, and I'm hopeful that we'll be able to. So because BJP, Mr. Nadda belongs to that state. They are bound. They have a department in their headquarter. कहाँ तोड़ सकते हैं? तोड़ो कितना तोड़ दे तोड़ो. कहाँ है ये डिपार्टमेंट? अब AICC इनके अपने हेडक्वार्टर में अपने बीजेपी शायद AICC में है ये डिपार्टमेंट. अरे तोड़ लो ना. पूरी बीजेपी को कांग्रेस बना दो. पूरी बीजेपी को कांग्रेस बना दो. हम तो खुश हैं. कांग्रेस मुक्त थोड़ा हो रहा है. बीजेपी मुक्त हो रहा है. ले जाओ सबको, ले जाओ जितने ले जाने ले जाओ. Okay, add your point. Right now in Himachal Pradesh Assembly, there are 47 MLAs. Of them, 34 are of the Congress. Had the same thing happened with the BJP, wherein a certain number of MLAs opposition MLAs would have been expelled for whatever reason, a certain number of rebel MLAs would have been disqualified for whatever reason, we'd be having this debate and calling it Chanakya Niti, master stroke. But somehow when the same thing happens with the Congress, Niti, if you actually manage to control the damage. My question is, after the damage, not passed? It is still on tenterhooks. I just made you listen to your PCC chief who is sniping at the chief minister. She is your state president. How will you fight the elections together? 2014 में किस नारे से आए थे? कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे. आज हिमाचल प्रदेश से किसे राज्यसभा का सांसद बनाया है? 40 साल के कांग्रेसमैन को, हर्ष महाजन को. बना देते भाई. आपको अभिषेक मनु सिंह हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है. जब हमारी जगह बीजेपी ही सबको बना देगी, हमें बनाने की क्या जरूरत है? अशोक चव्हाण कांग्रेसमैन for the longest of time. आप इसी में खुश रहिए. BJP has sent him to the Rajya Sabha. Maybe then Rahul Gandhi should fight Amethi on a BJP ticket. The same Ashok Chavan, against whom Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, and now the Prime Minister of the country was saying he's the most corrupt man, he's stolen flats from widows and this and that. Now, unko mala pehna rahe hain. अब उन्हें राज्यसभा ले जा रहे हैं. How is that what a is party? Your point? My question is a very simple political electoral question. A hypocritical party. They will level all sorts of nonsense allegations against leaders of the opposition, and now they bring the same opposition leaders to Rajya Sabha, somebody that make a minister or this or that. While the Congress, you are thinking that the Congress's ship has sunk or is falling, but the Congress government in Himachal Pradesh is still very well intact. So let me just understand. You are saying that the moral victory will be yours, even if the electoral victory is the BJP. The electoral victory is with the Congress right now. Who is ruling Himachal? Who is governing Himachal at this moment? It is the Congress. Okay. Basudeb Swaraj, at the end of the day, the fact remains they managed to save their government. They have managed to control the damage, and they are going to fight the elections in the face of a marauding BJP which is using Sam Dam Dand Bhed. Not at all. I must say it was definitely an embarrassing loss for the Congress party. And I understand बहुत हताशा के स्वर जो है सबरवाल साहब से निकले, and I understand why sort of Nikhil ji was trying to camouflage the entire embarrassment that was caused to the Congress party. There's just one statistic that I'll place before you. Ever since 2009, the Congress vote share across India, ever since Mr. Rahul Gandhi has been at the helm of everything, has dropped from 28.55% to 19.5% in 2019. Padmaja, this is very, very important because it shows that there is a disconnect between the leadership and the cadre, between the karyakarta and the neta. In fact, coming back to Samirji's point, the fact that Mr. Rahul Gandhi has chosen to travel abroad and chose allegedly his lectures in Cambridge over coming and listening to the Congress karyakartas. Pratibha Singh is no small person. She is the Congress chief. If she is talking about that the Congress is in a disarray, if she is talking about that her words were, there is no coordination. There is no coordination between the karyakarta and the leadership, and this is absolutely symptomatic of that particular aspect. See, you can turn around and make all these allegations qua the BJP, but can you scuttle away from the fact that today the Congress is in utter disarray because the leadership has zero connect from the karyakarta? Okay, answer this, Ramesh Abbawal. Yes, the BJP is going to do everything it takes to win an election. However, I want to quote to you people who just in the last 1 week have left the Congress. Rana Goswami, former working president of APCC. I am following the path taken by Ghulam Nabi Azad, Jyotiraditya Scindia. We are all leaving Congress with pain in our hearts. Geeta Koda, former member of parliament. Congress indulging in appeasement politics. They are saying we take everyone along, but only the first family matters. Kaustuv Bagchi from West Bengal.
He says Congress is in a self-destructive mode. Elections are at the door. You are not focusing on winning. You are focusing on the image branding of one individual through a yatra. And I was reading in a magazine that for the longest time, Ashok Chavan was trying to get a meeting with Rahul Gandhi. And every time he got an SMS back saying, talk to Casey. Talk to Casey. That's it. He's Ashok Chavan. How is this going to be a party where you can say BJP is responsible for our breakup? Ma'am, we have a president called Mr. Khadge, not Mr. Rahul Gandhi. Is not a president of the party. And we have general secretaries of each and every state, you know. And regarding Ashok Chauhan ji, he was my colleague in Youth Congress. He's the son of a chief minister. He was himself a chief minister. His father was the home minister. Ramesh Chanitla ji was in charge there. I met both of them together. Ashok ji was with me at Khadge ji's house before he went to the... Ma'am, he is washing... Vijay, you're always meeting people just before they leave the Congress. Are you sure you're not... No, I know where the problem is going on. Ma'am, washing powder, washing machine. He told me frankly, Ramesh, I'm suffering. I have no path. If I have to go this way or I have to go this way. Why was he suffering? Because ED CBI. Achha. This is total, I'm telling you. Hemant also told me privately, 10 times before leaving. Madam, the way in which I've told you, undeclared emergency. Ek minute. Undeclared emergency. Undeclared, overambitious. Undeclared emergency. In this मतलब गलती उनमें है जो चली गई, not the people who are refusing to give them appointments. मैं आपकी बात से सहमत हूँ. There are problems in our party. अगर ये नहीं होता, तो ये सब नहीं हो रहा होता. Doesn't matter. We are, abhi aap, like the Himachal, you know, we formed the committee immediately. The observers went from Delhi. Shiv Kumar went from Karnataka. Hooda ji went from Haryana. So, system, you know. You do not think there is a basic lack? Now, answer the specific question. Basuri Swaraj is saying, in the middle of your crisis, the Gandhi family has a holiday home in Shimla. No. And yet, they had no clue, one, what is happening in Himachal. Two, the one man who is the face of your party, and correct me if I'm wrong, Vinod ji, ये कहने की बातें हैं कि खड़गे जी प्रेसिडेंट हैं, हाँ वो हैं, बट जो सारे टिकट के बंटवारे होते हैं, जो सारे मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, उसमें तो राहुल गांधी की हाँ चाहिए होती है, करेक्ट? देखिए, राहुल गांधी इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और खड़गे जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं इसलिए सर्वोच्च नेता कह रहा हूं कि जैसे मैं बीजेपी का एग्जाम्पल, नड्डा जी अध्यक्ष हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। लेकिन आप बीजेपी किसी आदमी से पूछिए कि बोले अमित भाई से बात करिए, अमित भाई जो चाहेंगे वो होगा। किसी टिकट से बात करिए, सीधे कहता है कि अमित भाई। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी में इस तरह का एक सिस्टम है। वही स्थिति राहुल गांधी की है कि डिसीजन मेकिंग में। तो राहुल गांधी भले ही टेक्निकली अध्यक्ष ना हूं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है पार्टी को एकजुट रखने की। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि खड़गे जी हैं, लेकिन खड़गे जी के साथ जब हर आदमी राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है, तो इसका मतलब राहुल गांधी की भूमिका है निर्णय लेने में। और जब भूमिका है निर्णय लेने में, तो वो केसी वेणुगोपाल के थ्रू निर्णय करवा रहे हैं या सीधे कर रहे हैं, ये वो जाने। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं में इस बात को लेकर के असंतोष है कि भाई आप हमें कुछ दे नहीं सकते तो दर्शन तो दे सकते हैं कम से कम। मिलने में हमें क्यों 40-40 दिन, 2-2 साल या 1-1 साल लगते हैं? जो मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूं जो छोड़ के गए। उनके अपने स्वार्थ होंगे, अपनी समस्याएं होंगी, और वो ये भी कहते हुए जाते हैं कि ये पार्टी अब बीजेपी से लड़ नहीं पा रही है, इसलिए हम बीजेपी में जा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि अब बीजेपी से लड़ नहीं पा रही तो हम बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन अगर आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर जो एक इमोशनल टच, जो पर्सनल टच जो नेतृत्व का होता है कार्यकर्ता और नेता के प्रति, इंदिरा जी का था कि नहीं था? इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा जी हारी हैं तो बड़े नेता छोड़ के चले गए उनको पार्टी से निकाल, जो सिद्धार्थ शंकर रे वगैरह, लेकिन कॉमन नेता ने नहीं छोड़ा, वर्कर ने नहीं छोड़ा उनको, क्योंकि उनका पर्सनल टच था। आज कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम परिवार है उसमें सोनिया जी का तो पर्सनल टच मौजूद रहा है, आज राहुल गांधी का और प्रियंका जी का पर्सनल टच लगभग खत्म हो गया वर्कर के साथ। और ये एक बड़ी समस्या है, इस वजह से भी लोग छोड़ के जाने के लिए मजबूर हैं या घर बैठ गए। ऐसे लोग घर बैठ गए हैं जो लॉयल हैं, लॉयल टू द पार्टी, लॉयल टू द आइडियोलॉजी, लॉयल टू द फैमिली, वो घर बैठे हुए हैं। सुरेश पचौरी, हरकेश बहादुर, सत्यव्रत चतुर्वेदी को बाहरी कर दिया गया। कितने नाम में गिनाऊं? दर्जनों, जिनको आपने बैठा दिया घर पे, जनार्दन द्विवेदी जैसे लोग, क्योंकि जिनको सब कुछ दिया वो छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो आत्ममंथन करना पड़ेगा ना कि आपने किसको चुना और किसको नहीं चुना। Okay, before you respond, Nikhil Jain, I want to get in Basu Swaraj. Answer the point that it's very easy for you to mock Rahul Gandhi's
non-involvement in the, in the affairs of what's happening right now in the party. But even in your party, like Vinodji said, and Amit Shah wields more power than the party president. So it's not okay for Rahul Gandhi to constantly be targeted saying that he's the power behind the throne. So, Padmaja, it is not about Mr. Rahul Gandhi alone. I will, very respectfully, I'm going to speak about Mr. Khadge right now. 400 पार का आशीर्वाद तो खड़े होकर संसद में उन्होंने हमें दे दिया. नहीं, वो तो There is, करोड़ के no, पेश but किया there, गया. I'll come into it. There is also a video which is going viral on social media. मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी, एक न्यूज चैनल ने उनसे टिप्पणी लेने का प्रयास करा. एक पैनल डिस्कशन थी जहां पर संदेश खाली पर उनसे टिप्पणी लेने का प्रयास करा. बहुत ही संवेदनशील विषय है और खड़गे जी, बहुत विनम्रता से कहूंगी, उसके बारे में शायद अवगत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने संदेश खाली पर टिप्पणी ना करते हुए वो बिल्कुल विषयांतर करते हुए कभी फार्मर की बात करने लग गए. बार बार एंकर उनको लेकर आ रहे. तो मैं ये बात कर रही हूं कि बिल्कुल विनोद जी की एक बात से मैं सहमत हूं. कांग्रेस नहीं, एक बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. ये आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत विनम्रता से कह रही हूं, आपके पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे जी तो भारत के विषयों से समन्वय नहीं रख रहे और आपके सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी तो भारत से ही समन्वय नहीं रख रहे. वो तो कैम्ब्रिज में, लंदन में घूम रहे हैं. ओके, समीर जी, अंदर ना कम बैक टू के लिए. देखिए, मेरा कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ पार्टी अफेयर्स में फेल नहीं हो रहे हैं. आप देखिए, गठबंधन की राजनीति के अंदर भी अपने पार्टी के सहयोगियों से भी संवाद नहीं करते. इंडिया गठबंधन बना, राहुल गांधी यात्रा लेकर निकले, बंगाल में ममता बनर्जी से संवाद नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश संवाद नहीं कर पा रहे हो, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, आप उसका संवाद नहीं कर पा रहे हो, महाराष्ट्र में आप उद्धव ठाकरे संवाद नहीं कर पा रहे हो. मुझे लगता है राहुल गांधी जब यात्रा लेकर निकल रहे हैं, उन्हें पता है कि कांग्रेस जिस बुरी स्थिति से गुजर रही है 2 चुनाव से, 2014 और 2019 से, यह कांग्रेस के सर्वाइवल का इलेक्शन होने वाला है 2024 का. उस स्थिति में ना आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो, ना जिसके सहारे आप राजनीति करना चाहते हो देश के अंदर, उन दलों से भी आप संवाद नहीं कर रहे हो. मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, और राहुल गांधी न कांग्रेस को संभाल पा रहे हैं, न गठबंधन के सहयोगी को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं. मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरीके से राहुल गांधी के ऊपर निर्भर है. मुझे लग रहा है राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सीखना चाहिए कि इतनी मजबूत स्थिति होने के बाद भी, 303 का बहुमत होने के बाद भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह किस तरह से 24 घंटे 7 दिन काम करते रहे संगठन के लिए, सरकार के लिए. यह बताता है कि राजनीति देश में कैसी की जाती है, पार्टी कैसे आगे बढ़ती है. हाँ, आपने क्योंकि गठबंधन की बात की, आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट, गुड टाइम टू ब्रिंग इन प्रोफेसर अनवर पाशा. आपको लग रहा है कि कमजोर कड़ी आपके अलायंस में कांग्रेस पार्टी बन रही है? थैंक यू पद्मजा जी. देयर इज नो डाउट Congress is facing a crisis, unprecedented crisis after independence. It is a fact. But my concern is that this is not a matter of one party. I think this is the matter of politics, the kind of politics that has been promoted for the last 10 years. Now the getting power at any cost is the main purpose of the political parties and leaders. And this is a matter of concern for all those people of the country also. This is not only a matter of introspection for the Congress or the BJP or other parties. This is a matter of introspection for the entire country, for the people of this country. What kind of politics they want and where we have deviated from our path. Where we have deviated from the path of political ethics and political values. This is the fact today. हमें गौर करना पड़ेगा इस पे कि आखिर हम इस तरह की पॉलिटिक्स, जहां आपने सही कहा था कि साम दाम दंड भेद, ये आज नीति बन गई है पॉलिटिक्स की. Whether we should support this kind of politics or not. But sir, this is very also humbly question. if I may interject, साम दाम दंड भेद तो कांग्रेस ने भी एम्प्लॉय किया हिमाचल प्रदेश में. उन्होंने रेबल्स और बीजेपी के लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया ताकि उनका बजट पास हो जाए. और वो है चाणक्य नीति. आपको अपना बजट पास कराना था, नहीं तो सरकार गिर जाती. आपने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया. Defending Congress. तो आपने भी किया साम There are दाम दंड Congress भेद. spokesperson to defend Congress. I'm not here to defend the Congress. I'm just telling the facts. That is disturbing me. I'm really disturbed because due to this kind of politics. ये राजनीति की जो रास्ता हमने बना लिया है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जिस तरह की राह अपनाई थी, जिस तरह का रास्ता हमें दिखाया था, अब लगता है कि वो सारी चीजें खत्म हो गई. There is no need to follow those values, those ethics of politics that were created during the freedom struggle. I mean, I'm still trying to understand. So now we have deviated from that path, and we do not know where we are going. Okay. Where this journey will end. I'm This very is humbly my want concern. to interject again. You were saying that the Congress is facing a crisis, but that is because of the BJP and their Samdam Dand Bhed.
तो उनकी क्राइसिस उनके सामने से कैसे होगा? Kind of condition that has been created today. Everyone thinks in the politics that politics is the game of power. Including you. You have to grab you the broke power the at all AIMIM. costs. The RJD broke the AIMIM and took away all of theirs, barring their party president in Bihar. No, MIM is... अरे आपने भी तो तोड़ा है AIMIM को. MIM itself, the creation of MIM itself कांग्रेस ने बसपा को तोड़ दिया राजस्थान में, उसमें कौन सी बड़ी बात है? I consider MIM a unconstitutional party. अरे ऐसे कैसे? Yeah, I'm saying here. Registered party है. I'm here. All India Muslim Ittihadul Muslimin party. What kind of party it is? We do not approve it. Okay, In you a may secular not approve country, it, but that in a doesn't- secular constitution that we all follow, we all try to follow. That party deviates from there. So I reject totally MIM. AIMIM. You may, I sir, reject but it still totally. remains a party. Very quickly, Samir ji wants to respond, then I'll get in Nikhil Jain again. देखिए पद्मा जी, लोकतंत्र में तो जनता सर्वोपरि होती है। जनता डिसाइड करती है किसे शासन देना है और किसे सत्ता में लेकर आना है। अगर आप इस बात को मानता है विपक्ष की प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, तो आप मिलकर भी चुनौती देने की स्थिति क्यों उत्पन्न नहीं कर रहे हो? आप अकेले देने में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में सक्षम नहीं हो और मिलकर भी आप साथ में चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो आप इंडिया गठबंधन बनाया था, सब इकट्ठे आते, एक कैंडिडेट उतारते और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश करते। ये जानते हुए भी कि आप अकेले चुनौती दे नहीं सकते, आप गठबंधन की राजनीति भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर सभी पार्टियों का जो निजी स्वार्थ इन्वॉल्व है, इसी कारण ये आपस में इकट्ठा नहीं हो पा रहा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कल रात को प्रधानमंत्री मोदी 3:30 बजे तक बैठे और लगभग सभी टिकटों पे डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल कर चुकी है। और आज विपक्ष का देखिए कि कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ दिल्ली के अंदर 3 सीटों और 4 सीटों में गठबंधन की घोषणा हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे कह परेशान है, गठबंधन नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल में ममता के साथ नहीं हुआ, नीतीश चली गए। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आरजेडी के साथ बिहार के अंदर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है? But to be fair, क्योंकि आप एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, I have to say that तेजस्वी यादव, for example, he is taken out a 3000 किलोमीटर यात्रा, he is taken out जन विश्वास यात्रा, वो अपना रैला कर रहे हैं 3 मार्च को। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को आप चुनाव से अलग कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी एक इलेक्शन का वायदा है। नहीं, but that is because the Congress itself says it's not an election उससे क्या यात्रा। होता है? ये तो कहने की बात है, वो पॉलिटिकल का वायदा अरे, है। but then- वो सारे मुद्दे राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के क्या कर लेते? दिल्ली में बैठ के कमरे में बैठ के क्या करता? दिल्ली में बैठ के वो टिकट डिसाइड करते हैं। टिकट तो मल्लिकार्जुन खड़गे और कमेटी में डिसाइड अरे करेगा। बट टिकट उनकी हामी के बिना कहाँ डिसाइड होता जो है? तेजस्वी कर रहे हैं, अरे आज तो ईमेल और हर चीज का जमाना है, कम्युनिकेशन का। आप लंदन में अमेरिका में बैठ के चीजें चला सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। But sir, वो नहीं चला रहे ना। That is what the complaints of most people is. Doesn't get appointments, लेकिन उनकी doesn't भारत take न्याय यात्रा decisions. भी एक चुनावी कार्यक्रम है और एक राजनीतिक कार्यक्रम है। But sir, अगर राजनीतिक कार्यक्रम वो है, रोड शो है और क्या है वो? ओके, बट वो कांग्रेस खुद नहीं मानती। ओके, ना माने अलग बात है। ऐसा राजनीतिक पैतरा है राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा की, जहां जहां से गुजरती है वहां वहां अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ अन्याय करती है। आप भूल गए कि जब राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा बंगाल गई तो वहां की माननीय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा दैट द कांग्रेस पार्टी वाज डिस्कर्टियस टू मी, और उसके बाद ही उनका बयान आया दैट आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ द कांग्रेस पार्टी इवन विंस 40 सीट्स। सिमिलरली जब हम यूपी की बात करें, न्याय यात्रा की परिवेश में बात करी, वहां पर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? मुझे न्योता ही नहीं दिया। मैं वही पूछना चाह रही बाद में, मैं वही आपसे पूछ रही हूं, मुझे एक चीज बताइए, कैसा राजनीतिक पैतरा है न्याय यात्रा का जो इतना अन्याय कर रहा है अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ कि ये अलायंस जर्जर कर भुरभुरा रहा। छोड़ के सबकी चिंता है बीजेपी को, अब हमारे अलायंस पार्टनर्स की भी चिंता है बीजेपी को। Can I please respond to the points that were You made? people are afraid of 1-to-1 fight. Can I? माफ करिए सर, 1-to-1 फाइट से तो आप भाग रहे हम हैं। क्या भाग रहे हैं? हाँ भाग रहे, आप मिलकर एक गठबंधन बनाकर भी आप तोड़ देते हैं। आप एक विचारधारा की समानता नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। बासुरी, what is आप NDA? अनडिक्लेयर इमरजेंसी से तोड़वा देते What हैं। is नीतीश को NDA? ले गए आप पूरी कोशिश करें। अब आपने मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश के ऊपर अभी सीबीआई का संबंध भेजा है कल। आप छोड़ किसको रहे हैं? सर 2019 आप किसको छोड़ रहे हैं? आप किसी को तो छोड़िए, आप छोड़ रहे नहीं। यू पीपल हैव नो फेथ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिटलर का से भी बड़ा, हिटलर शाही भी कुछ इसके सामने कुछ नहीं होगी। इतना बुरा हाल कर दिया कंट्री का। हम लोग यहाँ डिबेट करते हुए डरते हैं। हम लोग डिबेट पे आते हुए डरते हैं कि हमारे घर पे रेड ना हो जाए। हमें इतना डर लगता है कि हमारे घर ना कोई आ जाए। हम सच नहीं बोल पाते। इस तरह देश का बुरा हाल
Swear on my God, I'm in politics from last 40 years. With due regards to the Prime Minister of India, इतना बुरा हाल हमने देश के अंदर मिसयूज कर मैं वही कह रही हूं, जिस पार्टी ने आपातकाल लगाया वो लॉकडाउन हमने लगाया की बात करें। हम गए मीडिया के पास, गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, गए नोटिफिकेशन निकाला, इंदिरा जी ने पब्लिक को फेस किया, टीवी पे आके बोला आपके प्रधानमंत्री तो कहीं जाते ही नहीं है। Can I respond? Okay, just second, one at a time. Plus leaders before 2024, between 2019, right? 2014 to 2023, 400 plus stalwart leaders of the Congress party have left that party. There has been a mass exodus under the leadership of Mr. Rahul Gandhi. It is time for the Congress party, with due respect, to introspect. Okay, answer about Rahul Gandhi and Cambridge, then I'll come back to you, sir. Good sign for the Congress. What is a All good sign those for the people Congress? who have become irrelevant, they're all spent forces. They are going to join BJP. Now they will be liability for the BJP. BJP have to be worried about them. Okay, we will come to that as well, but I am not entirely certain if people like Ashok Chavan can be called a liability. Milind Deora, Baba Siddiqui, calling them a liability, one never knows. But anyway, go on. Yeah. So earlier in the debate, Basuri made a point that there is a lot of disconnect between Rahul Gandhi and the cadres. I'm not sure if any political leader in the country, any national leader in the country, has taken out the kind of yatra that the Bharat Jodo Yatra was, or doing what Bharat Jodo Nyaya Yatra is doing, connecting with the masses, connecting with the average Karyakarta, walking with them hand in shoulder, and actually listening to them and not just telling them their man ki baat. So I completely disagree with the part that Rahul Gandhi has no connect with the cadres. Yes, one thing I would do say that now when he's trying to do that, a lot of questions are being raised, and they are being raised by those people who for the longest of time were called gatekeepers in the Congress. So many people used to label Mr. Scindia as gatekeepers, that ye aadmi Maharaj hame aage nahi jaane dete, baat nahi karne dete. Now the same people are jumping ship to the BJP. You asked Sameer ji ki Scindia pe kaun se ED ke samand the. Scindia ke bangle ki kahani hum sabko pata hai. Jo wo bangla unko itna pyara tha, तो बीजेपी के पास ही था, तो बीजेपी नहीं देना था. All of it know that it's not any secret that any of us is making right now. Now, Sameer ji, sorry. अब Padmaja, you said that Cambridge Rahul Gandhi जा रहे हैं, उनका जनता से कोई connect ही नहीं है. Sorry, Basuri said. I think, Basuri said. Basuri, there are people on the panel who've been to these prestigious colleges. Jawaharlal Nehru went to Cambridge. What is wrong with going to Cambridge and Oxford and Harvard? There's nothing wrong with that. The point is that this man has been traveling through the country, thousands of kilometers, meeting so many people. If he goes there to deliver an intellectual talk in one of the foremost institutions of the world about the state of democracy in the country without teleprompters, why is the BJP so afraid of it? Okay, I don't understand that. Can I respond? And last छोटा सा एक point, Professor Anwar ने जब कहा कि he made his point about the BJP inducing these defections in the Congress, you said कि Congress में जो defections हो रही हैं क्या उसके लिए भी BJP को blame करते हैं? Tell me this, अगर किसी के घर में चोरी होगी तो मैं क्या खाली घर वालों को blame करूं या चोर को भी करूं? Why do we not blame the BJP for sending in all the summons, the money from the electoral bonds, all of the might, muscle and power that they have to defect leaders from other parties? Why do we not blame the चोर in the चोरी that is happening? Okay, first you answer about Cambridge, then you also answer कि भाई चोर को भी blame करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? There were two questions that Nikhil ji asked me. First, he talked about the yatra, and second, he asked me about Cambridge. No, Salcha, nothing wrong with Cambridge, but it is about the timing and it's about the priority of the leader. There is a crisis in a state where you are in power and still you choose your private engagement of going and giving an intellectual talk. Why you could not do that through VC? Vinod ji was talking about how modern technology has ensured that people can actually connect through VCs. You chose to actually physically go. That shows Mr. Rahul Gandhi's priority. Now, Nikhil, let me finish. Now we are talking about the yatra. बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने पहले भी करी थी. उसके बाद विधानसभा के चुनावों का परिणाम है. जनता जनार्दन ने दिखा दिया कि उनकी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. रही बात मन की बात, आपने कटाक्ष करा था ना मन की बात का, 110 एपिसोड हो गए हैं और आप जानते हैं कि मन की बात एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है. कभी लगा के 30 मिनट निकालकर सुनिएगा. वो भारत की श्रेष्ठता उभारता है. वो एक आशावादी कार्यक्रम है. मैं हर संडे सुनती हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं, मैं पहले से सुनती आई हूं, बिकॉज आई लाइक टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया. सी दिस इज
द होल एस्पेक्ट इज कि मोदी जी आज विकास की नीति कर रहे हैं, मोदी जी पद्मा अवार्ड्स को डेमोक्रेटाइज करके पीपल्स पद्मा ला रहे हैं, मोदी जी इन इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। आप अभी भी सत्ता के मोह मार एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा बने हैं जो सनातन के अभद्र टिप्पणी पे चुप रहता है, संदेश खाली पे भी चुप रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप स्वार्थ पे गठबंधन बांधते हैं तो आप राष्ट्र नीति और राष्ट्रहित की बात नहीं करते, स्वयं के साथ के सत्ता के मोह की केवल राजनीति की बात करते हैं। ओके समीर जी, अगर 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 कांग्रेस में चोरी हो रही है तो चोर का भी कुछ ब्लेम होना चाहिए ना। बीजेपी जिस तरीके से द मैस पोचिंग दैट इज गोइंग ऑन, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बीजेपी और कहां फिट करेंगे इन सब लोगों को? पद्मजा जी देखिए, जगदीश शेट्टार ये तो भारतीय जनता पार्टी के थे ना, मुख्यमंत्री रहे पूर्व, वह कांग्रेस में चले जाते हैं और 6 महीने बाद कर्नाटका में वापस एमएलसी कांग्रेस बनाती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में लौटकर आ जाते हैं। और ऐसे कई लीडर से जो गए, एनडी तिवारी थे 92 के एज में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, SM कृष्णा थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, 92 के एज में कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो। और ऐसे कई लीडर हैं जिनके ऊपर कोई जांच नहीं चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी में लौट कर आ रहे हैं। तो क्यों लौट कर आ रहे हैं? इसीलिए लौट कर आ रहे हैं कि उन्हें पता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह न राजनीतिक समझ रखता है, न संगठन को एकजुट रखने की कोशिश करता है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि यात्रा करने से वोट नहीं मिलता, संगठन तो हो आपका। आज कांग्रेस के पास ये स्थिति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बता रहा हूं पद्मजा जी कि लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। उम्मीदवार बोल रहे हैं कि आप हमें अगर 15 करोड़ रुपए दोगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम 10 करोड़ रुपए अपना बर्बाद नहीं करना चाहते, कि हमें पता है हम हारने वाले हैं। महाराष्ट्र के अंदर लीडर नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। नाना पटोले ने 4 दिन से बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस पार्टी के पास जहां इतना बड़ा संगठन रहा है महाराष्ट्र के अंदर, 6 महीने पहले 1 साल पहले तक सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर आपका संगठन मजबूत रहा है, आपने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार चलाई है, छत्तीसगढ़ में आपकी 5 साल की सरकार रही है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने सरकार चलाई है, वहां आज आपको चुनाव लड़ने की तैयार नहीं है। अशोक गहलोत चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, उनके बेटे वैभव गहलोत कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। आप बताइए, जब ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो पार्टी के अंदर कितनी निराशा आ गई। जो अमित शाह जी ने जो कहा था ना कि विकसित भारत और निराशा के बीच चुनाव आने वाला है, यह 2024 निराशा बना विकसित भारत का चुनाव है। कांग्रेस में सब लड़ेंगे, देश के लिए लड़ रहे हैं, सचिन पायलट देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं लड़ूंगा, अशोक गहलोत ने मना कर दिया चुनाव के खिलाफ लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आपके पटवारी ने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। No, but tell me this honestly. Tell me this honestly. Isn't there going to be? विनोद जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी फाइटिंग स्पिरिट है या थोड़ा कम हो गया है कांग्रेस में? न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे अंदर। न्यूक्लियर बॉम्ब है आपके अंदर? ओके, कमाल है। हाँ, कांग्रेस है, दिस इज कांग्रेस। ये भी तो हमारे वालों को तो लेके जा रहे हैं। सर, you should lead the Congress. I have seen more enthusiasm in you than on most people who come to defend the Congress. ब्लड टू देयर पार्टी। इनको वेंटिलेशन पे थे, 1 by 1 फाइट हो रही है, इंडिया अलायंस हो गया। अभी आप अलायंस की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने पार्टिसिपेट किया, समाजवादी पार्टी अखिलेश ने पार्टिसिपेट किया, एंड ठाकरे जी देखिए कितना बड़ा वेलकम करेंगे राहुल जी का महाराष्ट्र के अंदर। मैम कर लिया सर, आप छोड़ दीजिए ना। मुकुल जी इस काम पे लगे, मुकुल जी अपने कमेटी 2 महीने पहले बना दी थी। हम शो ऑफ नहीं करते सर, हम शो ऑफ नहीं करते। अपने लंच पे बुला रहे हैं, अजित पवार को लंच पर बुला रहे हैं बारामती। आप घबराए क्यों हुए? एक मिनट। वैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन तो भी एनडीए भी नहीं हुआ है। बिहार में हो गया क्या, यूपी में हो गया क्या, महाराष्ट्र में हो गया क्या शिंदे जी को कितनी सीटें मिलेंगी तय हो गया, क्या अजित पवार कितनी सीटें मिलेंगी तय हो गया। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, एनडीए में कहां हो गया सीट डिस्ट्रीब्यूशन? अभी तो बीजेपी अपनी लिस्ट फाइनल कर रही है, अभी उसमें लगे हुए 300 सीटों पर। जो पार्टी 303 सीटों का मोहम्मद लगे बैठी है, उसे जरूरत नहीं है इंडिया गठबंधन। नहीं इंडिया के अंदर समीर भाई वो बात जरूरत तो आज की तारीख में कांग्रेस को है जो 42 सीटों पर टिकी हुई है। हम तो एज ए जर्नलिस्ट, हम आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम तो उनकी बात भी करेंगे ना। इंडिया गठबंधन में प्रॉब्लम है सीट एडजस्टमेंट की, कौन नहीं कर रहा? शुरू से पहले दिन से जिस गठबंधन तब से थी प्रॉब्लम, आज भी है, और वो सॉर्ट आउट हो रही है। जैसे दिल्ली में हो गई, यूपी में हो गई। अभी अब वो अजित पवार मांग रहे हैं 17 सीटें, वो शिंदे मांग रहे हैं 23 सीटें, तो 17, 23, 40 हो गई, बची 8, उसमें और 2-3 उनके होंगे। तो क्या ऐसा थोड़ी होगा? तो वहां भी प्रॉब्लम है। लेकिन वो बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, समझदार पार्टी है, उन्होंने पहले अपना घर ठीक कर ले, उसके बाद उनसे बात करेंगे वो। तो ये उनके अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी में अभी पहले कांग्रेस पार्टी अपनी सीटें डिसाइड करे, कैंडिडेट डिसाइड करे, जैसा कि समीर भाई कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी कल ही मैंने पढ़ा जीतू पटवारी इंदौर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वहां लोग लड़ नहीं रहे हैं, लड़ेंगे नहीं, लेकिन एक डिमोडुलेशन तो है।
3 राज्य विधानसभा हारने के बाद एक मनोबल तो टूटा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए जो भगदड़ मची हुई है, जाने वाले कई लोग इसलिए भी जा रहे हैं कि उनको लगता है कि भविष्य नहीं है। अब भविष्य, ये तो जो कमजोर दिल के लोग हैं वो हमेशा सेना छोड़ के चल देते हैं। कमजोर दिल है या कमजोर कम्युनिकेशन है? दैट इज आल्सो एन इशू। दोनों चीजें हैं। लेकिन एक बात सुनिए पद्मजा, ये रमेश भाई बैठे हुए हैं, एक इनको दिल्ली कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, क्या दिया? आज है ना कांग्रेस में, और सोच भी नहीं रहे जाने बाहर। प्रॉब्लम जो आदमी इतने टाइम से डिफेंड कर रहा है कांग्रेस को, उनको नहीं दिया। जा कौन रहे हैं? दैट इज व्हाई पीपल आर सेइंग इन हिमाचल प्रदेश अभिषेक मनु सिंह भी बाहर से आके उनके ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं। जा वो रहे जिनको 40 साल में सब कुछ मिला। आप पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, वही गए हैं कांग्रेस छोड़ करके, जिनको पार्टी ने, फैमिली ने पिछले 40 साल में सब कुछ दिया है, हर पद पे, चाहे जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, नुकसान पार्टी का हो रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं, और जो इनके जैसे कार्यकर्ता हैं जो विक्टिम रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं के, आज भी मौजूद से, तो कांग्रेस का वो जो ग्राउंड वर्कर है वो नहीं कहीं जा रहा है, लेकिन जो बड़े नेता है वो जा रहे हैं। ये कांग्रेस हाईकमान को सोचना पड़ेगा कि किन चेहरों पर उन्होंने अभी तक दांव लगाया। ओके, नाउ लेट मी आस्क, एक मिनट में यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। चाहे वो राहुल गांधी जी का यात्रा हो, न्याय यात्रा हो, या उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा था, या फिर हमारे बिहार में आप देखें जो हमने एक अभी विश्वास यात्रा वहाँ किया, हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी ने, यात्रा का बहुत महत्व है। विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि यात्रा भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है, टू मेक अ कनेक्ट विद द पीपल, विद द मासेस, डायरेक्ट कनेक्ट विद द पीपल एंड द मासेस। ये उसका, एंड इट इज गोइंग टू गिव रिजल्ट, बेटर रिजल्ट as far as the result of 3 states is concerned. Yatra made a difference. The ratio of vote has not come down. The Congress ratio of vote has not come down in these there I aspects. humbly disagree. Though they have not come in power, but the ratio of vote has not come down. In Bihar, the kind of atmosphere has been created by Tejaswi Yadav ji that is going to pay. Which is great. So, Professor RJD Pasha, is we were going to actually win. drawing a Going to parallel gain. between the yatra being done by Tejaswi Yadav. When elections are around the corner, he is sitting in Patna. He is not sitting in Oxford University because he knows that I should be sitting in Gandhi Maidan of Patna and reaching out to my electorate. And the RJD is agreeing that this is a political yatra. You ask anyway, I was listening to Jairam Ramesh day before yesterday. He said ये तो आइडियोलॉजिकल यात्रा है, ये मोहब्बत की यात्रा है। भैया बोलिए ना, ये वोट की यात्रा है, मुझे वोट दो, मुझे ओबीसी का वोट चाहिए, मुझे फला का वोट चाहिए। आप मोहब्बत का वोट नहीं मिलेगा। जानने वाले हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर राहुल गांधी जी दिल्ली में भी बैठे होते तब भी ये सब लोग जो जा रहे हैं उनको जाना ही है, उनकी अलग मजबूरी है अपनी। वो उनसे पूछे किस मजबूरी के तहत जा रहे हैं। और दे आर गोइंग टू बी लायबिलिटी फॉर द BJP. Okay, speaking of the liability, now let me quote an example. You know, now you have Jyotiraditya Scindia in the BJP. He is supposedly going to be fielded from Guna. The problem though is, Banswari Swaraj, that you already have a sitting MP from Guna who happened to be an ex-aide of Jyotiraditya Scindia, who when he came to the BJP and you fielded him, he said, I am fighting against this Rajwada attitude. That, you know, I was the one who ran the constituency, Jyotiraditya Scindia did nothing. Now, what is your karyakarta going to feel like? Somebody who fought on your ticket, won, and now he's going to be replaced by Jyotiraditya Scindia. And this is just an example. This will happen to you across the country. So I'll answer it in a generic format because you said that this is pan-India. Every single karyakarta of Bharatiya Janata Party knows that she or he is exactly that, a karyakarta. यहां पर पद में पूर्व लगने में 2 मिनट नहीं लगते। ये हम लोग अपने संगठन की बैठकों में भी बोलते हैं। इसलिए ये पद नहीं दायित्व है, ये पद नहीं दायित्व है। दायित्व जब तक संगठन और पार्टी आपको देगी उसको आप निभाएंगे। उसके बाद अगर किसी दूसरे को मौका मिलता है उनको उस दायित्व को निभाने में आप उनकी मदद करेंगे। आई एम टेलिंग यू, हमारी विचारधारा यह है कि संगठन सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। यहाँ पर व्यक्तिगत हित नहीं देखे जाते। No, but here's the thing. No, I want to get a specific answer. No, I want to get a. मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे, केपी यादव गुना से चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर की लोकसभा सीट खाली हो रही है तो केपी पार्टी बनने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से लड़ेंगे, केपी यादव का टिकट नहीं कट रहा है और अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से सांसद है। तो अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे ऑप्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास उपलब्ध है। वो भोपाल से लड़ सकते हैं, ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल, चलिए आप केपी सिंह यादव को गुना से रखें, उनको ग्वालियर से कर ले, बट ये तो सीट बाय सीट एवरीवेयर यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। नाउ द एग्जिस्टिंग बीजेपी कार्यकर्ता एंड नांदेड़ इज गोइंग टू थिंक
कि अरे भाई ये क्या है, अब अशोक चव्हाण आ गए. द एग्जिस्टिंग बीजेपी कार्यकर्ता इन मराठवाड़ा इज गोइंग टू थिंक अभी अजीत पवार अपने आदमियों को लेकर के आ गया. पार्टी के प्रति समर्पण और संगठन की शक्ति यही होती है कि पार्टी अगर कहती है, अगर शिवराज सिंह चौहान से कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनोगे तो शिवराज सिंह चौहान ने विद्रोह नहीं किया. अगर राजस्थान के अंदर पहली बार के विधायक को अगर मुख्यमंत्री बना देते हैं तो पार्टी में विद्रोह नहीं होता है. Just like you're conjecturing about Mr. Sukhu, being displaced later. No, that was your example. And that is why I never answered in specifics. I gave a generic answer because I did not want to indulge in that example that you gave. So I am answering in generics because there is no certainty on any specifics. Having said that, as I said, संगठन सर्वोपरि. और रही बात, अगर आप बात कर रहे हैं कार्यकर्ता हताश होने की, अरे आपने देखा नहीं है, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, मोदी की गारंटी से हमारे कार्यकर्ता में इतना उत्साह है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ को एक तरफ रखकर देश और पार्टी के लिए काम करते हैं. But you know, right now the graph is up. कैबिनेट बदलती, गुजरात के अंदर पूरी कैबिनेट बदलती सीएम के साथ. क्या किसी ने रिवोल्ट किया? और आप वहीं कांग्रेस में देखो, अशोक गहलोत से कहा कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं. राजस्थान के अंदर क्या हुआ सबको मालूम है. But sir, that is when आपका सितारा बुलंदी पे है. कभी ना कभी अगर कोई कमजोर होगा, that is when the voices of dissonance can start, right? I mean, 2 सांसद थे 1984 में, तब भी यही स्थिति थी संगठन के प्रति समर्पण, और आज 303 सांसद है, तभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है. ये संगठन के प्रति समर्पण है, इसलिए 2 से लेकर 303 तक पहुंचे, और कांग्रेस 4 से 14 से लेकर 40 से पहुंच गई. ओके विनोद जी, ऐसा नहीं है. कल्याण सिंह ने विद्रोह किया, शंकर सिंह वघेला ने विद्रोह किया, भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह होते रहे हैं. ऐसा भारती ने किया, कल्याण सिंह ने किया ना, शंकर सिंह भारती ने किया, लेकिन संगठन इतना मजबूत हुआ कि लौट के आना पड़ा आपको पार्टी के पास. अलग, वो तो अर्जुन सिंह और नैना तिवारी को भी लौट के आना पड़ा कांग्रेस में, उन्होंने विद्रोह किया था. वो तो अलग बात है. दोनों तरह के उदाहरण. ओके फाइनल पॉइंट. हाँ, So they say that nobody from the BJP revolts, and Basuri says ये ऐसी पार्टी है जहां पद में पूर्व लगने में 2 मिनट नहीं लगता, मार्गदर्शक मंडल में जाने में भी 2 मिनट नहीं लगता जब 75 पार होता है, सिवाय मोदी जी के. Fact is, this is a party where posts, positions, whether government, whether of party, do not matter. It is only 2 people that matter, and their writ reigns supreme. So far as your point is concerned, that you will never hear of revolt from the BJP. The reason is that as much as they have the ED for the opposition leaders, they have it for their own leaders as well. And when the pastures are green, your people do defect. There was defections in the Karnataka Rajya Sabha voting where the Congress is in power. So at the end of the day, what you have is power, and power is never permanent in a democracy so long as we stay one. Okay, let's hope that you get your formula to come to power sooner rather than later. On that note, let me ask for the final bouncer of a question. आपके पद में कुछ बदलाव होने वाला है बांसुरी स्वराज, since you are here on the national debate, let us take the opportunity. मेरा पद एक कार्यकर्ता का है और मेरी आखिरी श्वास तक मैं एक कार्यकर्ता रहूंगी. All right, we will wait for the tickets to be declared for the Lok Sabha. Thanks very much. आज मुझे अच्छा लगा, मुझे सुषमा जी की याद आ गई. बांसुरी जी इतना अच्छा बोल रही थी. और दिल्ली से पुराना रिश्ता है, तो क्या दिल्ली से एक और नया रिश्ता in the upcoming elections is there going to be there? We'll be keeping a close watch. Thanks very much for joining us on the national debate, all gentlemen and Basuri Swaraj. Thanks for watching.